بہت قیمتی بات ہے، اگر توجہ سے سنو گے۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ یقین کرو، یہ شک نہ کرو، یہ جتنے حالات آتے ہیں دین کی کمی کی وجہ سے، جتنے پریشانی آتے ہیں کس وجہ سے؟ قرآن کہتا ہے جتنی بھی تکلیف آتی ہے وہ انسان کے اعمال کی وجہ سے آتی، بے دینی کی وجہ سے آتے، دین کی کمی کی وجہ سے آتی ہے، جتنے بھی حالات ہیں۔ ابھی میں گیا تھا چند دن پہلے لاچی سے آگے ورشنڈ علاقہ، وہاں کچھ مدرسے کی وہ تھی ڈولائی بنڈا، تو وہاں لوگوں کو دیکھا کہ پینے کا پانی اور وضو کا پانی بھی ٹینکروں سے لے کے جاتے ہیں، کنویں خشک ہو گئے۔ اللہ کے ساتھ پانی کی کمی ہے، حدیث میں ہے۔ یا اللہ، تو ہمیں ہمارے پتہ نہیں اندر کتنے گندے ہیں، اللہ اور اللہ کی رسول کی بات پر اعتماد نہیں۔ وہ یہ ہے، اللہ فرماتے حدیث وَلَوْ أَنَّ عِبَادِي أَطَاعُونِي، یہ اللہ حدیث قدسی ہے، اگر میرے بندے میرے فرمان بردار ہو جائے، لَأَسْقَيْتُهُمُ الْمَطَرَ بِاللَّيْلِ، میں رات کو ان پر بارش برساؤں گا، وَأَطْلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ، دن کو سورج نکلواؤں گا، وَلَمْ أُسْمِعْهُمْ، اس لیے بارش کے ان کے کام خراب نہ ہو جائے، سورج نکلواؤں گے کہ دنیا کے کام بھی کرتے رہے، رات کو ویسی بھی سو رہے۔ وَلَمْ أُسْمِعْهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ، یا اللہ سبحان، اور رات کی بارش میں بھی گرج کی آواز نہیں ہوگی تاکہ ان کی نیند خراب نہ ہو۔ انسان اتنا اللہ لحاظ رکھتا ہے، اگر انسان تھوڑا اللہ کا فرمان بردار بن جائے تو۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی یہ بات یاد رکھو، یہ امت پریشان کیا ہے اور پریشانی سے نکلے گی کیسے؟ یہ اسپیشلسٹ ہے، لوگ عام ڈاکٹر سے علاج نہیں کرتے، بڑے لوگ بڑے اسپیشلسٹوں سے علاج کرتے ہیں، یہ اسپیشلسٹ کی بات ہے۔ یہ آج جو پریشانیاں ہیں دین کی کمی، اور دین کی کمی کیا ہے، اس کے دو وجہ ہیں۔ کتنے وجہ ہے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ؟ کتنے وجہ ہے؟ ایک، مسلمان کو دینی حالت پر قناعت ہے کہ دین تو میرا پورا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہوں اور ذکر کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، کسی کو زیادتی نہیں دیتا ہوں۔ حالانکہ یقین نہ کرو، یہ ترو جھوٹ نہیں بولتا ہوں، یہ ممبر جو بیان کرتا ہے اس میں بھی کمی ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ پورا دن آئے گا تو اللہ پاک پورا نظام ہمارے حوالے کرے گا۔ مولانا محمد احمد صاحب فرماتے ہیں جب انسان پوری دین پر چلتا ہے، اللہ پورے کائنات کو آرڈر دیتے کہ جس طرح میری مان کر کے چلو، اس کی بھی اس طرح مان کر کے چلو۔ اور مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن میں لکھا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو پوری دین پر چلے گا، اللہ کے ہر چھوٹے بڑے نافرمانی سے بچائے گا، اس کو 2 جنتی ملے گی۔ تو کیا مطلب بتایا ہے معارف القرآن میں؟ ایک تو مرنے کے بعد جنت، ایک اللہ پاک اس انسان کی دنیا کی زندگی جنت بنائیں۔ یہ وعدے ہے، یہ پورا کیوں نہیں ہوتے؟ دین کی کمی ہے، اور دین کی کمی کیا ہے؟ 2 وجہ ہے۔ دینی حالت پر قناعت ہے، مسلمان دین کی کمی سمجھتا نہیں، سمجھتا ہے کہ میرا بڑا گھر نہیں ہے، میرے شادی نہیں ہے، میرے بچی نہیں ہے، میرے بڑا تنہا نہیں ہے، میرا یہ نہیں ہے، میرا یہ نہیں۔ دین کی کمی کو کسی کو فکر نہیں ہے۔ یہ عجیب بات سناؤ، یہ پیر کے دن کالو بانڈا ہے یہاں گڑی میں، وہاں کچھ بچوں نے حفظ کیا، مجھے شاید مغرب کے بعد بیان کے لیے لے گیا تھا۔ ایک آدمی 40 سال کا میرے ساتھ کہہ رہا تھا کہ ایک آدمی کے دوست آیا، اس کے گھر میں کوئی دوست آیا، اس کے 8 سال کی بچی تھی۔ کتنے سال کی؟ بڑے فخر سے، یہ بچی میڈیم انگلش اسکول میں پڑھتی، آپ ان سے انگلش میں بات کر لو، میری بات سمجھتے؟ زنانہ بچی تھی 8 سال کی، بڑی فخر کرتا تھا میرے بچی انگلش بولتی ہے۔ تو مہمان نے پوچھا اس بچی سے کہ بیٹی کلمہ پڑھو، وہ کہتے کلمہ کیا ہوتا؟ یا اللہ یا اللہ، خدا پاک کی قسم، یہ بچی قیامت کے دن باپ کا گریبان پکڑے گی کہ اس نے مجھے بھی دین کیا۔ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، معارف القرآن میں قیامت میں سب سے سخت عذاب اس آدمی کو ہوگا جس کی بیوی بچے غافل اور جاہل ہیں۔ یہ دنیاوی تعلیم، علم، دین کا علم ہے، ہم دنیا ڈگریوں پر فخر کر، دین کی کمی کا کسی کو احساس نہیں ہے، کلمہ یاد نہیں ہے اور انگلش میں میڈل اسکول پر فخر کرتے ہیں، کلمہ نہیں آتا ہے 8 سال کی بچہ، یہ کیا کہتا ہے؟ اتنے بے خبر ہے کہ کیا کہتا ہے یہ۔ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ایک جوان سے کہا کہ بیٹے نماز پڑھو، اس نے، یہ میں نے کتاب میں دیکھی، اس نے کہا مجھے تو اللہ کی ذات میں شک ہے کہ اللہ ہے یا نہیں، آپ کہتے ہیں، پھر خود بتائیے میرے باپ آپ کی غلط تربیت ہے، مجھے ایسے ماحول میں بھیجا کہ مجھے اللہ کے ذات میں شک پیدا۔ تو دین کی کمی کیوں ہے؟ دینی حالت پر قناعت ہے۔ ایک آدمی ہے 8 مہینے پہلے، ایک عالم میرے ساتھ آپ جیسے عمر کا کھانے پر بیٹھا تھا، کسی کی دعوت تھی، مجھے کہا کہ شرم کی وجہ سے آپ سے کہہ نہیں سکتا، آج بتاتا ہوں، مولوی محمد شاہ صاحب کو میں نے خواب میں دیکھا، اس نے آدمی نے کہا، ہمارے مدرسے کے محتمم تھے، کہ مولوی عظیم سے کہو کہ لوگوں کو یہ میراث کا مسئلہ بھی بیان کرے ممبر پر، یہ خواب میں بتایا۔
کو लोगों को किसका मसला बयान करे। फिर इशारा किया कि ये जो सारे अजाब में कब्रों में पड़े हैं ये मीरास न देने की वजह से पड़े। कोई अल्लाह का हुक्म समझता नहीं है। बहुत कमियां है लेकिन कमी का एहसास नहीं, और ये कमी का एहसास अपने मुकाम पर हासिल नहीं होता है। हमारी ये पीर साहब बहुत प्यारी बात करता है, 2 दफा मैंने सुना पीर आजम शाह साहब, एक आदमी सर से पांव तक पानी में डूबा हुआ है, आप उनको तकरीर करो, वो बेचारा उनके कानों में पानी है, आंखों में पानी है, सारा पानी में डूबा है, वो तो मारे, इसको इस पानी से निकालो, फिर बात समझ में आ गई, फिर बात समझ में एहसास होगा कि मुझ में किया है। तो दीन की कमी की क्या वजह है? दीनी हालत पर कनात। और दूसरी बात, दुनिया में शिद्दत इन्हिमात, मजबूत रस्सियों से पड़ा है। हमारे पीर साहब लाची मरकज में एक ऐसा बयान करते हैं, मुझे बड़ी प्यारी लगी। चंद साल पहले के जोड़ में एक आदमी भेड़ बकरियां चराने वाले सीधे से सादे लोग होते हैं, एक जंगल में देखा कि एक दरख्त है, वहां एक रस्सी लटकी हुई है, नीचे कुआं है। जब देखा तो जिंदा आदमी लटकाया हुआ है, पांव से बांध करके उल्टा लटकाया हुआ है। तो चरवाहे ने कहा इसके साथ तो किसी ने बड़ा जुल्म किया है, जोर लगाया कि उसको निकालो। उसने कहा मुझे मत निकालो। क्यों? ये मैंने खुद किया है, ये मैंने जालिम खुद क्यों किया है? वो कहता है कि मुझे अल्लाह मिल जाए, अल्लाह के तलाश में। और मुझे क्या मिल जाए? वो सीधा साधा आदमी था कि अल्लाह आसानी के साथ मिलता है, उसके साथ द्रांति थी, जल्दी जल्दी घास काटा। वो जो पहले ने बांधा था वो प्लास्टिक की रस्सी से बांधा था मजबूत से, इसने तो घास से रस्सी बनाई और पाँव के साथ बांधा और दरख्त के साथ और चलान लगाया कि अल्लाह इस तरह मिलता है। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा मेरी मोहब्बत में जा रहा है, ऐसा उसको पैरों से बचाओ कि थोड़ा भी उसको चोट न लगे। वो रस्सी तो टूटने वाली। जब वो किनारे पर आया तो कहा तुम तो लटके रहो, हमें तो खुदा मिल गई, तुम तो लटके रहो। यकीन करो खुदा पाक की कसम, ये बात मौलाना इजाज, आज हमने मजबूत रस्सियों से बांधा हुआ है। ईमान का तकाजा है कि अल्लाह का हुक्म आए सब कुछ छोड़ करके निकलो, ये ईमान की सिफत है। तफसीर उस्मानी में बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्ना अल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही। इस आयत की तफसीर में बहुत प्यारी, मुझे तो बहुत प्यारी लगता है, बहुत प्यारी। यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल जिस बात की तुम्हें दावत देते हैं, इसमें सर तपा तुम्हारे लिए भलाई है, इसमें सर तपा तुम्हारे लिए सर नवन सब चोपरे पके खैर दा। इसका दावती पैगाम दुनिया में अमन अमान की जिंदगी और आखिरत में हयात अबदी का पैगाम है। उसका दावती पैगाम दुनिया में अमन अमान की जिंदगी और आखिरत में हयात अबदी का पैगाम। या अल्लाह, मुझे तो ये जुमला इतना प्यारा लगता है कि दिल को चीरता है। बस मुमिनीन की शान ये है, मुमिनीन की, कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पुकार पर फौरन लब्बैक है। जहाँ के लिए जितने वक़्त के लिए बोला सारे अशगाल छोड़ करके, ये ईमान है। अगर ये बात नहीं तो ईमान में खोट है। इस ईमान ये बीमार है, ये पेट्रोल में कुछ पानी मिला हुआ है। हाँ, अल्लाह के रसूल की पुकार पर छोड़ नहीं सकते तो समझे कि मुझ में कुछ है। यकीन करो मेरे प्यारे भैया, कुरान की बात कहता, आप खुद तफसीर उस्मानी दे। बस मुमिनीन की शान ये है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की पुकार पर फौरन लब्बैक है। जहाँ के लिए जितने वक़्त के लिए पुकारे, सारे अशगाल, दुकान है, बीवी है, बच्चे है, जितना मसरूफियत कोई, सारे अशगाल छोड़कर वहाँ पहुँच जाए। ये तकाजा है, अल्लाह हमें ऐसा बनाए। तो मेरे प्यारे भाइयों, इंसान की कीमत दुनिया की चीजों से नहीं बनती, हम दुनिया की चीजों से कीमत बनवाते। इंसान की कीमत ईमान अमल से बनती है। मारिफुल कुरान में है कि हारून रशीद के दरबार में एक गैर मुस्लिम ने इस्लाम पर एतराज किया। गैर मुस्लिम ने किया कि तुम तो कहते हैं कि इस्लाम में मुसावात है, बराबरी है, इस्लाम में मुसावात है, हर एक के साथ एक हूँ। मुसावात कहाँ है? एक आदमी ने चोरी कर दी, क्या कर दी, और शरी 10 दिरहम का हो, 2 तोले 7.5 मशे बनते हैं 10 दिरहम से, 2 तोले चांदी, इतना यानी कम से कम इतना चोरी की तो ये हाथ यहाँ काटा जाएगा। शरीयत का हुक्म है, वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तू अयदियहुमा। इससे कम हो तो नहीं है। 2 तोले 7.5 मशे चांदी की कीमत है, यानी 10 दिरहम की कीमत के चोरी की है। तो इस पर अगर सबूत हो जाए तो इसका हाथ काटा जाएगा। क्या किया जाएगा? काटा जाएगा। समझ में आ गई? यहाँ 10 दिरहम पर काटते हैं, लेकिन अगर किसी ने चोरी नहीं की, किसी ने इसका हाथ काटा, वैसे काटा, तो इसका दियत 50 ऊंट है। कितने ऊंट है?
आदमी की दियत 100 ऊंट है, इसका के आधा दियत कितना है? 1 ऊंट कितने का है बताओ? 5-6 लाख को 50 को 5-6 लाख से जरा दो 2.5 करोड़ बनता है। यहाँ 10 दिरहम लगाते हो, वहाँ 2.5 करोड़ कलाहत की कीमत लगाते हो। ये फर्क क्या हो? ये तो मुसावात नहीं है। तो वो आलिम ने जवाब दिया, तुम समझता नहीं है। इन्नहा लम्मा कानत अमीनतन कानत समीनतन, ये हाथ जब अमानतदार था, चोरी नहीं की, अल्लाह के नजदीक इसकी कीमत 2.5 करोड़ थी। लम्मा खानत हानत, जब उसने खयानत की, करोड़ों से 10 रुपए उसकी कीमत हुई। अल्लाह पाक की कसम, इंसान की कीमत ऐसी गिर जाती अमल के खराबी की वजह से। अमल के सही होने की वजह से इंसान बुलंद होता जा रहा है। जिंदगी मेरे प्यारे भाइयों, थोड़ा सा अपने अमाल को सही करने में लग जाओ, ईमान बनाने में लग जाओ। आज बुनियादी चीज ईमान में कमी है। मैंने कहा कि मोमिनीन की शान ये है, ये जो हम नहीं निकल सकते, ये ईमान में कमी। कितने जमाने से इरादे करते हैं, नहीं लगा सकते। अल्लाह का हुक्म पैर पीछे देखना, ये मोमिनीन की शान नहीं है, ये ईमान में कोट। ईमान वाला तो अल्लाह के हर हुक्म पर जान देने के लिए तैयार होता है। ईमान बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरे प्यारे भाई, एक बात याद रखो, ये दिल में बैठाओ, कभी दिल से में अल्लाह से नाशुक्री न आ जाए। अल्लाह ने हमें बहुत बड़ी दौलत ईमान की दी, सबसे बड़ी दौलत। एक कारी तैयब साहब ने लिखा है कि देवबंद के महतमे में एक बुजुर्ग एक शहर में दाखिल हो रहे थे, जैसे इस्लामाबाद, वहाँ बादशाह था। वो बादशाह ने सारा नाकाबंदी करती, शहर को अंदर कोई आने की बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। बुजुर्ग के साथ मुरीद भी थे। पूछा ये क्यों? उसने कहा बादशाह का बाज पंजरे से उड़ गया है, उसने हुक्म दिया है कि सारे रास्तों को बंद कर। तो वो बुजुर्ग हंसने लगा, या अल्लाह, एक तरह आपने उसको हुकूमत दी है, दूसरे तरफ इतना पागल है कि परिंदे के लिए, बास के लिए रोडों को बंद कर दिया। कोई भैंस गाय तो नहीं है, मोटर तो नहीं है। थोड़ा सा ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। थोड़ा सा दिल में शिकायत भी आया वो बुजुर्ग को कि मुझे एक वक्त खाना मिलता है, दूसरे वक्त नहीं मिलता है, और इसको हुकूमत दी। तो किसी जरिए से उसको पैगाम आया कि अगर तू इस हालत पर राजी नहीं है, तुम्हारा ईमान उसको दिया जाएगा, उसकी हुकूमत तुम्हें। फिर डर गए नहीं यार। मेरे प्यारे भाई, दिल में खुश रखे, अल्लाह ने हमें ईमान दिया, सबसे बड़ी चीज ईमान है। सबसे कितने वजीर आजम मुट्ठी में पड़े हैं, उसको कुछ फायदा देगा? ईमान तुम्हारे साथ जाए। ईमान ये है मेरे प्यारे भाई, ईमान में यकीन, सही यकीन ये है कि इंसान को सब कुछ अल्लाह के हाथ में होता हुआ नजर आए। अभी हमें पैसों में नजर आता है, ये गलत यकीन है। ये सारा बेगाड़ गलत यकीन की है दुनिया में। कि बस दिन रात ये सोच है कि कैसे ज्यादा पैसे आएंगे तो मेरी जिंदगी बनेगी। अब्दुल वहाब साहब फरमाते, जिसके दिल में ये बात बीती हो, ये तो हर अल्लाह दिल को देखता है। अल्लाह पाक 24 घंटे उससे नाराज है। जिसके दिल में हो के माल से जिंदगी कौन बनाता है? अल्लाह। ये जुबान पर ना हो, अल्लाह करे हमारे दिल में ये बात उतर जाए, फिर अल्लाह को राजी करना आसान है, फिर अल्लाह का हुक्म मानना आसान है। अभी पीर साहब ने असर से पहले बहुत प्यारा मुज़ाकरा किया कि भाई एक बातिल की कुव्वत है, एक हक की कुव्वत है। एक बातिल की है, बातिल देखो, बातिल ये है कि आदमी कारोबार करता है, दुकान करता है, जुमीदारा करता है, मुलाजमत करता है, लेकिन इसके अंदर अहकामात नहीं। ये बातिल की मेहनत। दुकान में अहकामात पूरा करता है, मुलाजमत में अहकामात पूरा करता है, जुमीदार में ये हक की मेहनत। यही एक ही मेहनत है, लेकिन सही भी हो सकती है, गलत भी। लेकिन इसको सही होने के लिए पहले ईमान बनाना जरूरी है, तब ये वो करेगा। वैसे लोग गलतफहमी में पड़े हैं कि हम तो हलाल कमाते हैं, किसी को नहीं ना, हलाल को जानते भी नहीं है। तो ईमान बनाना सबसे, कलमा दिल में, अल्लाह हमारे ईमान सही करे। और इसके लिए सबब जो है, आज मेरी ये बात तवज्जो से सुनो। ईमान बनाने के 2 रास्ते हैं, 2 चीजें हैं, 2 चीजों से ईमान बनते हैं। कितने से? एक तो नफिया इस बात की दावत देना है, सुनना है रोजाना जुबान से कि अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं हुआ। अपने बच्चों से भी ये कहो कि जिंदगी तुम्हारा अल्लाह बनाएगा, हम नहीं है। औरतों से भी कहो, हम पर एतमाद न करो, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी। अब्दुल वहाब साहब तीरा खदीजे में इज्तिमा था, फरमाते थे अगर औरत में ईमान होगी तो अपने खावन से भी छुपाएगी, अपने जरूरत मियाँ बीवी से, वो माँ बाप से भी रात को उठकर अल्लाह से मांगी। अल्लाह सब मुश्किलात को अल्लाह नामुमकिन को मुमकिन बनाता है, अल्लाह नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। एक तो ईमान बनता है नफी इस बात के दावत से। ये हमारे साथी
दिलबखान साहब सिर्फ एक चीज बयान करते हैं, ये दूसरी चीज बहुत ज्यादा कीमती, अगर आज तवज्जो से सुनोगे बहुत फायदा होगा। मैं अपने तरफ से नहीं, मौलाना यूसुफ रहमहुल्लाह की बात है। मौलाना यूसुफ रहमहुल्लाह की बात है कि जब दीन का तकाजा आता है, तुम्हारे से रोजे का वक्त आया, तुम्हारा रोजाना 2.5 घंटे का वक्त आया, तुम्हारा वो चेले का वक्त आया, इस वक्त दुनिया का तकाजा पहाड़ जितना आता है, सोकन जैसा। अगर तुमने दीन के तकाजे को आगे कर दिया, तुम ईमान के एतबार से जबरदस्त तरक्की करो। सिर्फ चिल्ला नहीं है, से रोजा नहीं है, 2.5 घंटे नहीं, तुम्हारा ईमान आगे बढ़ेगा। अगर तुमने से रोजा पीछे गया, से रोजा नहीं, खुदा पाक की कसम, तो ईमान के एतबार से नीचे चलेगी, तुम्हारा ईमान यकीन में कमी आई। तो एहतमाम के साथ 2.5 घंटे, ये रोजाना का वक्त है, माहाना का है, सालाना, इसको किसी कीमत पर पीछे न करो। दुनिया की जितने भी बड़े काम हो उनको यकीन करो, ये अज़ाइम करो, आप ईमान के एतबार से दिन ब दिन बढ़ते जाओगे और अल्लाह आपको जरिया बनाएगा पूरे इंसानियत की हिदायत। हाथ तो खड़ा करें, इंशाल्लाह ऐसा करेंगे। और इसके लिए आज 2 रकात शब जुमे में नमाज भी, सलात हाजिर भी पढ़े। या अल्लाह, मैंने इरादा किया अपने जिंदगी ईमान बनता है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलने से। आज मैंने एक किताब में देखा करी तैयब साहब की, इमाम अबू दाऊद 5 लाख हदीस याद थी, अबू दाऊद में 4800 हदीस नकल की। ये एक दरिया के किनारे जा रहा था, दरिया में वो कश्ती थी 400 गज पर, वहां आदमी को चींक आया। क्या आया? चींक आया। तो चींक पर क्या कहना चाहिए? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। इहयाउल उलूम में इमाम गज़ाली ने लिखा है रहमहुल्लाह कि जो चींक पर अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा उसको कभी गुर्दे का दर्द नहीं है। अगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल पड़ेगा तो दाढ़ की दर्द, कान की दर्द भी नहीं आ रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना सुन्नत है, लेकिन जो सुने उन पर जवाब देना वाजिब है। यरहमुकल्लाह, जो तुम्हारे पास हो, उसने चींक आई, उसने अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारे जिम्मे वाजिब है कि क्या कहो? यरहमुकल्लाह। वो तो 300 गज पर आदमी को पानी के अंदर किश्ती में छींक गई, उसने उन जगह से अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम अबू दाऊद बेचैन हो गया, हालांकि उस पर जरूरी नहीं था इतना दूर पहुंचाने कि इसको तो यरहमुल्लाह कहना चाहिए। बिल्कुल किताब में इसने 3 रुपए पर कश्ती खरीद ली और वहां जाकर जहाज, बहरी जहाज में उनको यरहमुकल्लाह का। जब वापस आ रहा था, आसमान से हातिफी आवाज आई, ए इमाम अबू दाऊद, तुमने 3 रुपए के बदले में जन्नत खरीद। फिर किताब में लिखा है कि इमाम अबू दाऊद ने तो 5 लाख हदीसें और लोगों को पढ़ाया है, अल्लाह ने जन्नत के लिए वो नहीं बताई। ये सुन्नत के एहतमाम की वजह से कि दिल में सुन्नत तरीके की कदरदानी थी। एक एक सुन्नत जमीन आसमान से ज्यादा कीमती। मेरे प्यारे बरगरों में सुन्नतें पैदा कर दो, रहमतें होंगी।